Gratitude greetings. It's festive season, and I'm truly blessed to sit in front of Shakti Payal Goda. She's the founder of the Shakti, the power within us. She's a self love coach who can make us fall in love with ourselves. She does great work on emotional intelligence. She can manifest with ease and peace. She's an energy reader and healer. She's a blessing on the planet on a big mission to help as many as possible. Millions? Yes. She's a big thinker, she's intuitive, she's confident, and she's a gem. She's beautiful hearted. I'm super excited to learn her secrets. Welcome, Shakti Payal. Thank you so much, Sunny. Thank you for this very heartwarming welcome and your kind words of introduction. They are really, really very, I feel really blessed to hear them. And thank you so much for having me and giving me a chance to connect with so many people and spread this love and positivity everywhere possible. थैंक यू। मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बहुत कम चीजें बोली हैं। यू आर एन एनएलपी मास्टर टू। यू आर Yes. जादू की छड़ी ऑफ द लॉर्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट टू। प्लीज टेल अस द सीक्रेट ऑफ योर स्माइल फर्स्ट। I'll tell secret of my smile is my love for myself. Um, Over the years, I'll say my journey started of self-love from 2015. उससे पहले ही मैं हमेशा एक हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी रही हूँ, लेकिन मेरा सेल्फ लव खुद के लिए इतना स्ट्रांग नहीं था. But I always felt that your smile can do wonders. I always believed that when you smile, you can actually lighten up the mood of many people out there because that is you, right? कई बार लोग बहुत कुछ चीजों से गो थ्रू करते हैं, और अगर आपका एक ऐसा फेस है जिसमें स्माइल नहीं है, जिसमें इतना टेंशन और स्ट्रेस भरा है, तो वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को भी नेगेटिव कर सकता है. और अगर आप स्माइलिंग है, अपनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, तो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी आप लाइट दे सकते हैं. So your smile is actually your power. And when I started loving myself more and more, I think this has become like a very natural energy of me. So when I smile, this is like vibrating and reaching to everyone because it is all coming from within. यू आर abundance specialist. I know it comes from self love. So, what are your three tips for us, for us to follow and be like you? Okay, so first is always believing in yourself. So when I say love yourself, is actually acknowledging the infinite within you. So what I have learned from my masters is that I have God within me and you also have the God within you, right? All of us have it. But the thing is, जब हम हमारे material और physical self में बहुत ज़्यादा attach हो जाते हैं, हम limitations में अपने आप को देखते हैं. तो जब हमें अबांडेंस में वाइब्रेट करना है, हमें अपने इनफाइनाइट सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है. दैट इज द फर्स्ट थिंग एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज मीन बाय सेल्फ लव. So when you really love yourself, you ignite and you connect with your infinite self, which we all have. That's uh, the beauty. So yes. that is the first tip, right? Second is there's nothing that major that you think. Sometimes we are very serious about life, everything. हम बहुत serious हो जाते हैं, हमें लगता है ओ बहुत बड़ी चीज होगी, ये बहुत बड़ी चीज हो गई है. हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, हम ओवर मैच्योर हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है ना स्माइल करना, एक ऐसा स्टर्न फेस रखना, कम बातें करना, उससे हम ज्यादा मच्योर दिखेंगे या सोसाइटी में फिट होंगे. बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है. दैट्स अ वेरी रॉन्ग बिलीफ. सो यू मस्ट ऑलवेज हैव दैट फन एलिमेंट, दैट natural connection with the entire universe and people around you. Nothing is that serious that you make it very serious.
लाइफ इज इजी, ये आपके ऊपर आप उसको कैसे देखते हैं. एंड ऑफ कोर्स थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, राइट? यू विल कम अक्रॉस मेनी थिंग्स बिकॉज दैट इज हाउ द जर्नी हैज टू बी, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द जर्नी इटसेल्फ. सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें एकदम हैप्पी गो लकी फन टाइप में रहना चाहिए. ज्यादा हर चीज को दिल पे लगाना, सीरियस हो जाना, हर चीज में सैड हो जाना, उसकी हमें जरूरत नहीं है. सो सेकेंड tip for being abundant or being in self love should be that one. And third is expressing your gratitude for every little thing in life, क्योंकि हमें बहुत कुछ मिल रहा है. एक्चुअल में हमें बहुत कुछ मिल रहा है. हमारे ऊपर 24 घंटे ग्रेस है, लेकिन हमारी अपनी ईगो है कि हम उस चीज को देख नहीं पाते. हमें ऐसा लगता है ये चीज तो नहीं मिली, ये चीज तो नहीं हुई, जब ये चीज हो जाएंगी तब हम जो है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे. But I think the very first thing that when you are getting up, waking up, and you are alive, that is the biggest gratitude that you must have in your heart, that you have another chance to do things in life. You're at least in this body again to do or to accomplish your goals. So gratitude is the key. जितना आप gratitude express करते हैं, आपको abundance वाली feeling आती है. वाह यार, मेरे पास तो ये भी है, वो भी है, इतनी सारी चीजें हैं मेरे पास. मैं ऐसे ही एवे ही रो रही हूँ, एवे ही रो रहा हूँ. तो मुझे एक अच्छी फीलिंग ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ऑलरेडी अबंडेंट हूँ. और जब मैं ये फील करती हूँ तो और ज्यादा अट्रैक्ट करती हूँ. So true. Believe in yourself because there's infinite within you. उसके बाद Yes. शुक्राना और मुस्कुराना तो इजी बना ही दिया आपने. थैंक यू. ये इतनी छोटी उम्र में काले बाल में इतनी विजडम कहाँ से आई? छोटी उम्र में, क्योंकि लाइफ के ऐसे सिचुएशंस थे, और मैंने हमेशा अपने आप को फैमिली में बड़ा समझा. मुझे ऐसा लगता था सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है. मुझे अपने घर को, अपनी फैमिली को हमेशा संभालना है, जबकि मैं सबसे छोटी रही हूँ. लेकिन ये मेरी एक कार्मिक एनर्जी थी. बचपन से मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती थी, मुझे खुद को ही ऐसा लगता था. और उस फेज में मैं अपने आप को खो बैठी. दो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी और अच्छी रहती थी, लेकिन कई बार मैं ओवर इमोशनल हो जाती थी, या फिर समझती नहीं थी कि मैं अपने प्यार, अपनी केयर को मैं कॉम्प्रोमाइज करते हुए दूसरों को दे रही हूँ. एंड विच इज नॉट फ्रूटफुल नीदर टू देम नॉट टू मी, क्योंकि मेरा सेल्फ लव तो बहुत कम है. उस जर्नी में जब मैं अल्टीमेटली बहुत हर्ट होने लगी, तब मुझे ऐसा लगा देयर इज समथिंग रॉन्ग, दैट दैट इज विद इन मी, दैट आई नीड टू करेक्ट. और मुझे अपने प्लैनेट्स पे डिपेंड नहीं होना है कि कोई मुझे बोले अच्छा आपकी तो 7.5 ही चल रही है, आपका तो राहु दशा महादशा चल रही है, आपका तो केतु महादशा चल रहा है, इसलिए थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े साल रुक जाओ. तो मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, मैं मेरे लाइफ का कंट्रोल क्यों किसी प्लैनेट्स पे तो जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ. सो दैट्स रियली वेरी अनफेयर टू मी. तो मैंने सोचा मैं एक्सप्लोर करूँ, कुछ तो मेरे अंदर है जो गलत है. क्योंकि बचपन में मैंने मम्मी से ये सीखा था, टीचर से सीखा था, यू वर्क हार्ड एंड यू गेट द रिजल्ट्स. तो मुझे ऐसा लगता था मैं इतना वर्क कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे. तो मेरी कहीं ना कहीं पे कुछ गलती हो रही है. और फिर जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज्ड दैट व्हाट आई वाज मिसिंग इन माय लाइफ थ्रू आउट माय लाइफ वाज सेल्फ लव. एंड आई ऑल्सो रियलाइज दैट मेनी पीपल, इनफैक्ट मैं तो सबको बोलूंगी, दो ये थोड़ी एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई अपने लाइफ में सेल्फ लव ही मिस कर जाता है. और अगर आपका सेल्फ लव ठीक नहीं है तो आप कुछ भी करें, क्योंकि आपका बेस ही ठीक नहीं है, आप इमारत कितनी भी बड़ी बना दे. तो इसलिए आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो जल्दी से पता चल गया मेरी जिंदगी में कि सेल्फ लव इज द की टू एवरीथिंग, एंड इसलिए मैं सीख पाई. यू आर अ एंड आई ग्रेट टीचर. एम. यू आर ऑल्सो अ ग्रेट टीचर. हाँ. आराम से, तसल्ली से, अच्छे से एक्सप्लेन करते हो. फिर ये कम्युनिकेशन स्किल्स, ये ह्यूमर, ये कहाँ से आया? आई थिंक ये मैंने कभी सीखा नहीं था, और मुझे ये पता भी नहीं था कि मेरे अंदर है. जब मैं एक कम्युनिकेशन ट्रेनर बनी थी, अगेन दिस वाज बाय चांस, मेरा ये कभी गोल नहीं था, ना मैंने इसके लिए कभी पढ़ाई की थी. मैंने इनफैक्ट एयरलाइन इंडस्ट्री में आईएटा कोर्स किया था, एयर टिकटिंग एंड ऑल. एंड मुझे ऐसा लगा था कि ठीक है, ये ठीक ठाक सा जॉब है. मैंने एयरपोर्ट पे कुछ ट्रैवल एजेंसीज में काम किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है.
और मैं हमेशा ऐसे बिलीव करती थी करना वही है जिसमें मजा आना है। तो तभी मेरे को पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन फिर भी मैंने जॉब क्विट कर दिया। मैं तो उस टाइप की एक पर्सनालिटी थी जो रिस्क लेती थी। और मुझे ऐसा लगता था हमेशा हमें वही करना चाहिए, उसी के साथ रहना चाहिए जिसमें हमें अच्छा लगे। तो वैसे करते करते बाय चांस मुझे मेरा एक जॉब मिला कम्युनिकेशन ट्रेनर का। और जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी वो मुझे बोलते थे कि कुछ तो है आपकी बातों में, ऐसा लगता है आपको सुनते जाए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि है, पता नहीं मैंने अपने आप को कभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया और गॉड ने कुछ दिया है। मुझे ऐसे लगता है कि एक पर्पस के साथ मैंने जन्म लिया है, और यूनिवर्स चाहती है कि मैं कुछ करूं और मेरे थ्रू कुछ चीजें हो। बाकी ये जो है यूनिवर्स का है, जिसको मिल रहा है वो भी यूनिवर्स उसको दे रही है, मैं एक माध्यम हूँ। तो शायद क्योंकि मैं एक माध्यम हूँ, ये मुझे जो है गॉड गिफ्ट मिला है, टैलेंट है, इससे मेरा कुछ भी नहीं है, सब उनका है। और मैं जब भी बोलती हूँ तो मैं बिना प्लान करे ही बोलती हूँ, तो मुझे भी नहीं पता है मैं क्या बोल देती हूँ क्या है। तो मैं इसका पूरा पूरा जो क्रेडिट है ये डिवाइन एनर्जीज को दूंगी, यूनिवर्स को दूंगी। एनर्जी वाले सारे ऐसे ही होते हैं. ग्रेट. नाउ कमिंग टू माय फेवरेट क्वेश्चन. योर थ्री हैप्पीएस्ट मोमेंट्स. My three happiest moments of life. I would say the first one when I founded Shakti. That would be, I guess, my most favorite happy and blessed moment of my life, क्योंकि again this came as a blessing. मैंने जब मेरी लास्ट जॉब छोड़ी थी तो मुझे नहीं पता था मैं क्या करने वाली हूँ. I failed in almost all interviews wherever I was going, and I did not know what to do. I was sitting in meditation on a Navratri day, and I was just asking the divine energy, what is it that you've taught for me? Why these things are not working? एंड वहां से आवाज आया, शक्ति द पावर विद इन यू, यू आर सपोज टू डू दिस। तो वहीं से वो नाम आया, शक्ति द बहुत पावर विद इन बहुत इंस्पायरिंग है. यू। आई जस्ट वहां से लव वो इट. नाम थैंक यू। 9 अप्रैल 2016 चैत्र नवरात्रि चल रही थी, और मैं बैठी थी और वहां से ये आया। और फिर मुझे ऐसे लगा ठीक है, शक्ति क्योंकि दी गई है मुझे, तो मेरा भी ये जर्नी है शक्ति से, पायल से शक्ति का। दैट इज वाई ऑलवेज पुट शक्ति पालगोड़ा, आई ऑलवेज से आई एम स्टिल ऑन दैट जर्नी। और तो वहां से ये मतलब मेरे लिए ये एक्चुअल में ब्लेसिंग है। जैसे मुझे यूनिवर्स ने बोला ये लो, और ये हमारा बेबी है, अभी आप इसको आगे लेके आपको चलना है। सो दैट वाज माय फर्स्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट दैट आई रिमेम्बर। वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैं बताना चाहूंगी, हाईलाइट करना चाहूंगी, बिकॉज ये मेरा सबसे फेवरेट करियर ऑप्शन बोलो, या ये चीज ऐसी है जो मैं 24 घंटे कर सकती हूँ। मुझे इसमें कोई तैयारी नहीं करनी है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है यही करती रहूँ। तो दिस इज मी, तो ये एक मेरा है। सेकेंड, व्हेन आई मेट माई लाइफ पार्टनर, बिकॉज मेरी सबसे बड़ी क्रिएशन रही है मेरा आइडियल लाइफ पार्टनर। आई वॉज ऑलवेज टोल्ड, जैसे क्योंकि पहले शक्ति के पहले जब मैं भी एक ऑर्डिनरी लाइफ जीती थी तो मेरा होरोस्कोप रीडिंग मैंने करवाया था, टैरो कार्ड रीडिंग करवाया था, तो सबने बोला था यू विल ऑलवेज डू एन अरेंज मैरिज, लव मैरिज आर नॉट देयर ऑन योर, लव मैरिज इज नॉट देयर ऑन योर कार्ड्स। तो मुझे ऐसे लग रहा था व्हाई, हाउ समवन कैन टेल मी कि आप इससे शादी कर लो। मुझे तो जानना है ना उस इंसान को, मैं पहले जानूं समझूं स्पिरिचुअली हमारी एनर्जी कैसे मैच कर रही है, मेरी अपनी क्रिएशन होनी चाहिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरा ऐसा था कि नहीं, मैं पैसिव नहीं हो सकती। अगर मैं वेजिटेबल्स भी लेने जा रही हूँ तो मैं इतनी चूजी हूँ, तो मैं लाइफ पार्टनर ऐसी कैसे है किसी से भी शादी कर लूं? तो मैंने बकायदा जीजा विजन जी बोर्ड देखने बनाया। वाले इंटरव्यू. Yes, he knows that. So मैंने 2016 में ही शक्ति के आने के बाद मैंने एक ये बनाया, पिक्चर बनाया, क्योंकि अब मुझे पता था मेरा सेल्फ लव बढ़ रहा है। तो मुझे ये भी समझ में आ गया, ओनली व्हेन यू रियली लव योर सेल्फ यू अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ। तो मैंने सारी क्वालिटीज लिख दी, और मैंने यूनिवर्स को बोला यही मुझे चाहिए, एंड मुझे लव मैरिज करना है। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, लेकिन मेरा ये एक चॉइस था। हाँ. So that was like 18 December 2016, I think, second happiest moment that I can remember. और थर्ड, मुझे एक और चीज बोलनी है, मेरा नेशनल आइकन अवार्ड। आई एम द पर्सन
मुझे ना ज्यादा अपनी ब्रांडिंग मार्केटिंग करना, लोगों से मिलना या फिर अवार्ड्स लेना वो सब नहीं आता था, क्योंकि मैं बहुत रॉ थी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे अवार्ड्स और वो सब मिलते हैं। तो मैं हेल्प टॉक्स पे देती थी टॉक्स, और मुझे किसी का फोन आया पूना से, और उन्होंने बोला कि हम जो है अवार्ड्स देते हैं, वी आर फ्रॉम दिस नेशनल अवार्ड कमिटी। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे के साथ मजाक कर रहा है, तो मैंने उसको बोला क्यों मजाक कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते थे, तो मुझे लगता है, मुझे से लगा कि ये एकदम कंप्लीट फेक कॉल है, और मैंने उनको इतना इंटरेस्ट नहीं दिया। उन्होंने बोला आप डिटेल्स दे दो, मिला ठीक है। और दिस वाज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो उन्होंने बोला हमने आपके टॉक्स देखे हैं सेल्फ लव के ऊपर, एंड वी रियली फील दैट यू आर एजुकेटिंग पीपल ऑन सेल्फ लव। वी वांट टू अप्रिशिएट योर वर्क इन द फॉर्म ऑफ एक्colades। सो मुझे फिर भी ऐसे लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड 6-8 महीने के बाद मुझे वहां से ईमेल आया, मुझे बकायदा इनविटेशन आया। एंड नवंबर में मुझे वहां पे बुलाया गया, और आई वाज गिवन नेशनल आइकन अवार्ड। सो दिस वाज रियली लाइक अ टोकन ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन जहाँ पे ऐसा नहीं था कि आई अप्रोच समवन या मैंने ब्रांडिंग के लिए ये किया। दिस आई एक्चुअली गॉट फॉर माई वर्क लाइक। सो मुझे लगा कि दिस वाज वेरी अ ट्रू अप्रिसिएशन, एंड इट इज रीचिंग टू पीपल। मतलब मैं ऐसे लोगों को जो जानती भी नहीं हूँ, वो मुझे सुन रहे हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मेरा काम पहुंच रहा है, मतलब डिविनिटी पहुंच रही है, थिंग्स आर वर्किंग। सो या आई थिंक दीज थ्री आई कैन Well से एट दिस deserved. मोमेंट। Well, थैंक यू। well, well deserved. Very थैंक यू well सो मच। deserved. So let's play one word answers now. Life in one word. ओके। Life in one word. Life in word, what I'll always say self love. I'll say love, love, Love in love, one love. word. Love in one word, I'll say infinite self. Unconditional, you can say. Coaching in one word. Coaching is passion. Healing in one word. Healing is, again, I would say it's love. Completely love. Self love in one word. Self love is one, in one word, I'll say birthright. Marriage Self in love one is, word. marriage is, I would say, beautiful. Shakti Payal Goda in one word. Journey from, I would not say one word, but I'll say journey from finite to infinite. You are truly infinite and you are magical. And yes, I really love the way you speak, the way you educate, the way you empower, and the name Shakti, the power within you. I wish you all the best in all your Thank, divine endeavors. I'm thank truly you. blessed that we spent Thank you. together and you inspired all of the viewers. I'm sure this will go to many because the interview was in Hindi. I'm sure Navjyoti children will love it. Thank you. Thank you. Thank you. Lots of love and blessings to you too. Thank you so much for having me. Thank you.